میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ میری شوہر کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ میرے میکے والے غریب تھے، اس لیے میں واپس بھی نہ جا سکی تھی، اس لیے نوکرانی کی طرح میں وہاں رہنے لگی۔ ایک دن مجھ پر دودھ گر گیا، میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا اور مارنے لگی تو میری سوتن بیچ میں آ گئی اور اس نے ساس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایسی بات کہی کہ میں نظر ملانے کے قابل نہ رہی، کیونکہ وہ میرا نام رابعہ ہے اور سب پیار سے مجھے رابی کہتے تھے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اسی وجہ سے کمانے کی ذمہ داری ابا کے ساتھ ساتھ میرے نازک کندھوں پر بھی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے کو میں نے ایک فرم میں اسسٹنٹ کی ملازمت کر لی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جو میری باس تھی۔ میری باس مجھ پر خاص مہربان تھی، اسے میری ایمانداری بہت پسند آئی تھی۔ میری باس اکثر مجھے میرے گھر تک چھوڑنے چلی آتی تھی، اسے مجھ میں پتہ نہیں کیوں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ مجھ جیسی عام اور غریب سی لڑکی پر وہ اس قدر مہربان کیوں تھی۔ وہ اکثر مجھے لے کر اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی، میں سب دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اکثر اس سے پوچھتی بھی تھی کہ وہ مجھ غریب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ وہ کہتی کہ بہت جلد تمہیں بتا دوں گی۔ اس کا راز بھی بہت جلد منظر عام پر آ گیا جب میری باس میرے گھر اپنے کزن کا رشتہ لے کر آئی۔ اس نے میرے غریب ماں باپ سے کہا کہ جہیز کے نام پر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ میرے ماں باپ کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے جھٹ میری شادی طے کر دی۔ نہ کچھ معلوم کروایا، نہ کچھ پتا کروایا کہ لڑکا کیسا ہے، کیسی عادات کا مالک ہے۔ بس میرے ماں باپ کو ان کی دولت نظر آئی اور انہوں نے بہت جلد میری شادی طے کر دی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ شادی میں بس میری باس اور ان کے گھر والے ہی تھے۔ میرا استقبال عجیب طریقے سے ہوا تھا، کسی نے مجھے اندر آنے کو کہا اور نہ ہی مجھے کوئی دلہنوں والا پروٹوکول دیا گیا۔ مجبوراً میں خود ہی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلی آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور میں اکیلی کھڑی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے جو مجھے ابھی بھی بیاہ کر لایا ہے، جس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر گزر گئی جب میری باس، جس کا نام رائما تھا، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اوپر جاؤ، دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ تمہارا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ کہہ لگا کر ہنس دی اور کہنے لگی، کون سا شوہر اور کیسا شوہر، بھول جاؤ اسے اور جاؤ کمرے میں۔ میں اس کے عجیب رویے پر حیران ہوتی ہوئی اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔ ولیمے کا بھی کوئی انتظام نہ کیا گیا اور میرے شوہر کی تو مجھے کچھ خیر خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اگلے دن ایک عورت میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری ساس ہوں، میرے کمرے میں آؤ اور میرے سر کی مالش کرو۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے اپنے سر میں مالش کروائی اور اپنی ٹانگیں بھی دبائیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اپنے کمرے کی صفائی بھی کروائی۔ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ دوپہر کے بعد میں نے نوکرانی سے رائما کا پوچھا۔ وہ کہنے لگی، وہ اور صاحب تو دفتر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں پتا ہے میرے شوہر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، وہی تو رائما باجی کے ساتھ دفتر گئے ہیں۔ میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کروائی گئی؟ میں نے اپنے گھر فون کر کے امی ابو کو بتانا چاہا، مگر وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ میں اپنی پریشانی ان کو بتا ہی نہیں سکی۔ اس طرح 2 دن اور گزر گئے۔ میں سارا دن اور ساری رات اپنی ساس کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی دیکھ لیا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں موقع پا کر دفتر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے رائما سے کہا کہ آج رات میرے شوہر کو میرے کمرے میں بھیج دیجیے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رائما کے ساتھ کافی بدتمیزی کر کے میں گھر واپس آ گئی۔ پھر وہی ہوا جو میں کہہ کر آئی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا
और आते ही कहने लगा कि तुमने रायमा से बदतमीजी क्यों की। मैंने चीख कर पूछा, क्या लगती है वो आपकी जो आप इसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं? एक कजन ही है ना। 2 पल वो चुप रहा, मगर जब मैंने दोबारा चीख कर पूछा कि एक कजन को अपनी बीवी पर फौकियत क्यों दे रहे हो, इसने जवाब में जो कहा वो सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान फट गया, क्योंकि इसने कहा था कि रायमा इसकी बीवी है, कजन नहीं। ये सब सुनकर मेरे होशो हवास सुन हो गए। वो मुझे रोता छोड़कर कमरे से बाहर रायमा के पास चला गया। मैं अपनी किस्मत पर अल्लाह से शिकवा करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया था कि मेरा शौहर पहले ही से शादीशुदा है। मैंने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। अपना बैग पैक करके मैं घर से निकल गई और अपने मैके आ गई। मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और इनकी खुशी से दमकते चेहरे देखकर मेरी हिम्मत न हुई कि मैं इनको अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में बताऊं। ज्यादा हैरत की बात ये थी कि मेरे आने के दूसरे दिन ही मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। इससे मेरी सौतन रायमा ने भेजा था। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर चली गई, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे और मैके में कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे हक में यही बेहतर था कि मैं वापस चले जाऊं। मैं घर वापस आ गई तो रायमा ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि मुझे यूं था कि तुम जरूर आओगी। मुझे इसकी शक्ल देखकर शदीद नफरत हुई और मैं चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, हमें बताया ही नहीं कि ये पहले ही से शादीशुदा है। तुम सब लोग झूठे हो, तुम एक लड़की नहीं डायन हो। मेरे शौहर ने मुझे एक थप्पड़ नसीब की और कहा कि अगर तुमने आज के बाद रायमा से बदतमीजी की तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर से निकाल दूंगा। मैं रोते हुए कमरे में आ गई। मेरी सौतन रायमा मुझे देखने के लिए आई, मगर मुझे इसकी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए थी। मैंने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी सास जो पहले रायमा की वजह से मेरा लिहाज करती थी, अब बिल्कुल न करती, क्योंकि वो जान गई थी कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मैं चुपचाप रहने लगी और नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। सुबह से शाम तक मैं घर के काम करके थक जाती, मगर मेरी सास मुझे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। अपने सारे काम मुझसे करवाती और 5-5 घंटे अपनी टांगे दबवाती रहती। मेरे शौहर और सौतन सारा दिन ऑफिस में गुजारते थे और मैं घर में मुलाजमा से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मेरी सौतन खुद ऐश करती है और मैं घर में रहती हूँ। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अपनी सौतन से बदला लेकर रहूंगी। इसलिए एक दिन मैंने इसके कमरे में गई और गुस्से में आके इसके सारे कपड़े उठाकर अपने कमरे में ले आई और इन्हें जला दिया। एक दिन मैं इसके कमरे में गई कि मेरी सास ने देख लिया। इसने शोर मचाया और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई जब मेरी सौतन ने कुछ ना कहा। इसने मेरी सास से कहा कि इसे करने दे जो ये करती है। मैं इसकी बातों और हरकतों का बुरा नहीं मनाती। मेरी सास अब मेरी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी और मौका ढूंढती थी कि वो किसी सूरत मुझे तंग करे। वो मेरे पकाए हुए खाने को भिगवा देती, मुझे सिर्फ सोने के लिए अपने कमरे में जाने देती, वरना सारा दिन काम करवाती रहती थी। एक दिन मुझसे किचन में काम करते हुए दूध गिर गया। मेरी सास ने देख लिया और वो आई और मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मेरी सौतन ने इनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मी आप इसे मेरी सौतन समझकर ना सही एक मुलाजमा समझकर ही इससे अच्छा सलूक कर लीजिए। इसकी इस बात पर मैंने हैरत से इसे देखा। इसकी बात ने मुझे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मेरी सास कहने लगी, तुम जानती हो ये तुम्हारे खिलाफ क्या साजिशें कर रही है और तुम फिर भी इसकी हिमायत कर रही हो। जब तक ये लड़की तुमसे अपना रवैया ठीक नहीं करेगी मैं इसके साथ यही सलूक करूंगी। मेरी सौतन ने कहा, कोई बात नहीं, ये गुस्से में ऐसा कर रही है, इसे करने दीजिए। मैं अपनी सौतन का दोस्ताना रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। पहले इसने मेरी शादी अपने शौहर से करवाई और अब मेरा साथ दे रही थी। मेरा शौहर और सास हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते थे, मगर मेरी सौतन सबके सामने डट जाती और कहती कि कोई भी इसके साथ ज्यादती ना करे।
वो अपनी कुछ ज्वेलरी मुझे देकर कहने लगी कि तुम रख लो। वो बहुत महंगी ज्वेलरी थी। मुझे यकीन न आया कि वो ये सब मुझे दे सकती है। वो कहने लगी, तुम भी बीवी हो मेरी तरह, तुम्हारे भी कुछ हकूक हैं, तुम फिक्र न करो, वो तुम्हारा भी शौहर है। मैं इसे समझाऊंगी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। इसके कहने पर अब मेरी सास और शौहर का रवैया ठीक हो गया था। वो मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगे थे। अक्सर मेरे शौहर और मेरी सौतन बाहर खाने पर जाने लगते तो मुझे जबरदस्ती साथ ले जाते। मैं इसके हुस्न अखलाक की कायल तो हो रही थी, मगर मुझे डर भी लगता था कि ये कोई साजिश ना हो। भला सौतन इतनी अच्छी कब से होने लगी? कुछ दिन मजीद गुजरे तो इसने मुझे अपने साथ ऑफिस भी ले जाना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि बहुत जल्द मैं अपना बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैं ये बात सुनकर इस कदर हैरान हो गई थी कि मुझसे बोला भी न गया। वो इस तरह अच्छी बनकर क्या हासिल करना चाहती थी? मेरे दिल में शक ने डेरे जमा ली कि कहीं वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मैंने सोचा हो सकता है वो खुद अच्छी बनकर मुझे बुरी बना दे। आखिर थी तो मैं इसकी सौतन थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना जेवर, अपना कारोबार अपनी सौतन के नाम कर दे? मैं अब इसकी तरफ से बहुत मोहतात हो गई थी। मुझे लगता था कि वो मुझे जहर ना देते, क्योंकि वो अक्सर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। इन्हीं दिनों मैं उम्मीद से हो गई। मुझसे और मेरे शौहर से ज्यादा खुशी इससे हुई थी। वो मेरा इंतहाई ख्याल रखने लगी। मैं डरते हुए किसी से कह भी न सकती थी, क्योंकि इस सूरत मेरी सास और शौहर मुझसे बदगुमान हो जाते कि वो इतनी अच्छी है तुम्हारे साथ। मैं इसका लाया हुआ खाना रख देती थी और इसे कहती थी मैंने खा लिया है। मुझे ये था कि कहीं वो हसद या जलन में मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाते। एक दिन मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ने का इरादा किया। वो किचन में मेरे लिए खाना लेने गई तो मैंने एक कैप्सूल दूध में मिलाते देख लिया। मैंने इसी वक्त वो दूध गिरा दिया और इसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम दूध में जहर मिला रही थी ना। मेरे शौहर ने ये देखा तो वो बेकाबू होकर मुझे मारने को दौड़े, मगर इसने इन्हें रोक दिया और कहने लगी, आप जाएं यहाँ से, वक्त आ गया है कि मैं इसे सब बता दूं। वो मुझसे कहने लगी, मैं और हसन एक दूसरे की कजन है, हमारी पसंद की शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और जिंदगी में कोई गम ना था। लेकिन मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। टेस्ट करवाए तो पता चला मुझे ब्लड कैंसर है। मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती। ये हकीकत मेरे और घर वालों के लिए बहुत अज़ियतनाक थी, लेकिन मैंने समझौता कर लिया। मैं चाहती थी मेरे मरने के बाद कोई अच्छी लड़की मेरे शौहर की जिंदगी में आए और मेरी कमी महसूस न होने दे। मेरे शौहर बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो दूसरी शादी के लिए हरगिज़ नहीं मानते थे, लेकिन मैंने अपनी कसम दी तो मान ली। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुमसे ही इनकी शादी करवाना चाहती थी। इसलिए जब तुम इस घर में आई तो कोई भी खुश नहीं था। मेरी सास और हसन दोनों ही राजी नहीं थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि तुम इससे अच्छे तरीके से बात करें। वो जहाँ तक बात है धोखे की, तो हमने तुम्हारे घर वालों को बता दिया था कि ये हसन की दूसरी शादी है। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, बल्कि हसन ने तो तुम्हारे घर वालों को बहुत सारी रकम भी दी थी। यकीन मानो राबिया, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया है। मैंने इस दूध में विटामिन का कैप्सूल मिलाया था। मैं तो चाहती हूँ अल्लाह मेरे हसन को बाप बनाए। मैं मरने वाली हूँ, क्या करूँगी जाते जाते किसी को दुख देकर। वो रोने लगी। इसकी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे खुद से शर्म महसूस हुई। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो बहुत अच्छी थी, इसने मुझे माफ कर दिया। मैंने अपने शौहर से भी माफी मांगी और इसने रायमा के कहने पर मुझे माफ कर दिया। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, लेकिन 3 माह बाद वो हम सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरी बेटी हुई तो मैंने इसका नाम रायमा रखा था। आज भी वो मेरे दिल में जिंदा है। मैं अपनी बेटी की परवरिश करके इसी की तरह बनाना चाहती थी। रायमा जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी रायमा जैसी हो, जो अपने से ज्यादा दूसरों का एहसास करते हैं।